Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the science book of standard 7. The name of the science book was Future Kids Science, and we have already completed 4 of its chapter from the beginning, and we are doing the 5th chapter. The name of the chapter is Acids, Bases and Salts. We have completed 2 parts of this chapter and we will be doing the last and concluding part today. We will start from turmeric as indicator. Turmeric is an important ingredient in curries. It remains yellow in neutral and acidic solution but turns red in alkaline solution. That is why turmeric stain becomes red on applying soap. Take a tablespoonful of turmeric powder in a cup. Add a little warm water to it, stir it well and make a paste. Apply turmeric paste on blotting paper or filter paper and dry it. Your indicator yellow turmeric paper is ready. With the help of a dropper, pour a drop of soap solution on the turmeric paper. What do you observe? Does the color change to red? Now put a drop of lemon juice solution on the turmeric paper. What do you observe? You will observe that the turmeric color changes yellow to red with the soap solution, but it does not change with the lemon juice solution. China rose as indicator. China rose indicator is a light pink colored solution which is extracted from the red flowers of China rose plant with water. China rose indicator turns acidic solutions to dark pink, magenta and basic solutions to green. Take some China rose petals and put them in a beaker. Add some warm water to it. Keep this mixture for some time till water becomes colored. Filter the mixture. You will get pink colored solution. Your indicator is ready. Take about 5 ml of soap solution in a test tube. Put a few drops of China rose solution and shake it. What do you observe? You will observe that China rose indicator turns soap solution to green and lemon juice solution to dark pink. Repeat the above activity. You will observe that there is no change in color on adding China rose indicator to common salt solution. It means common salt solution is neutral in nature. Red cabbage's indicator. Red cabbage contains a pigment which makes it an indicator. On addition of red cabbage indicator, acidic solution turns red, basic solution turns greenish yellow and neutral solutions turn purple. Add the crushed leaves of a red cabbage to a beaker filled with water. Boil it and allow to cool slightly. Stir the cabbage and water until the water becomes purple with sap from the leaves. Filter the mixture and collect the pure liquid. Your indicator is now ready. If this indicator is added to an acid, it will become red. If it is added to an alkali, it will become greenish yellow. ठीक है, तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी है. ऐसे तो लैब में जो है केमिकली तैयार होता है. कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा कि लिचेंस पौधे से हम लोग लिटमस निकालते हैं और उस लिटमस का सलूशन बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं जो कि काम करता है इंडिकेटर के रूप में. ठीक है, तो एसिडिक सलूशन में वो चेंज करता है अपने कलर को. लिटमस पेपर हमने पढ़ा पहले भी कि एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस जो है वो रेड होने लगता है. एसिडिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू होने लगता है. ठीक है, रेड लिटमस ब्लू चेंज करने लगता है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होता है. अब हम लोग टर्मरिक, हल्दी से इंडिकेटर बनाएंगे. ठीक है, टर्मरिक को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किस में, करीज में, सब्जियों में हम लोग डालते हैं ना टर्मरिक को. अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन में टर्मरिक को डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में अगर टर्मरिक सोल्यूशन को डालेंगे तो वो क्या करेगा, येलो रहेगा, अपना ओरिजिनल कलर में ही रहेगा. ठीक है, पर अगर एल्कलाइन सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ऐसे तो वो रेड कलर चेंज हो जाएगा और एसिडिक सोल्यूशन में भी अपना ओरिजिनल येलो कलर रहेगा. इसीलिए जब हमारे कपड़ों में हल्दी लग जाती है और हम उसके ऊपर साबुन घिसते हैं तो वहाँ पे रेड कलर में आ जाता है. ठीक है, आप टर्मरिक पेस्ट लीजिए, एक थोड़ा सा टर्मरिक लीजिए, उसमें पानी मिला के एक पेस्ट जैसा बना लीजिए. फिर उसको जो है वार्म वाटर मिला के पेस्ट जैसा बना लीजिए. फिर उस टर्मरिक पेस्ट को आप एक ब्लॉटिंग पेपर में, ब्लॉटिंग पेपर होता है जिसमें अगर डालने से वो कलर फैलने लगता है, उस पेपर में सब तरफ वो स्प्रेड होने लगता है. ठीक है, तो उसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं. तो ब्लॉटिंग पेपर में आप उसको डालिए, या फिर अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं मिले तो फिल्टर पेपर लेबोरेटरी में रहता है, उसमें टर्मरिक पेस्ट को डाल के उसको ड्राई कर दीजिए. ठीक है, अब आप एक जगह सोप सोल्यूशन बनाइए और एक ड्रॉपर से लेके थोड़ा सा सोप सोल्यूशन उस फिल्टर पेपर पे जो कि टर्मरिक इंडिकेटर आपने बनाया है, जिस पर है ना, फिल्टर पेपर में टर्मरिक पेस्ट लगा के आपने टर्मरिक इंडिकेटर बनाया है, उस पर आप उस सोप सोल्यूशन को डाल दीजिए. आप क्या देखेंगे कि सोप सोल्यूशन जो है वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब जो है एक और आप पेपर लीजिए, उसमें से आप टर्मरिक इंडिकेटर बनाइए, उसमें आप लेमन जूस डालिए. आप देखेंगे कुछ असर नहीं पड़ रहा है. एक और बनाइए टर्मरिक इंडिकेटर, उसमें आप
डिस्टिल वाटर डालें कुछ चेंज नहीं होगा। यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर किसको टेस्ट करने के लिए है? एल्कलाइन सोल्यूशन को है, जिसको कि वह रेड कलर में चेंज कर देता है। येलो कलर जो है टर्मरिक का वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब आ जाते हैं चाइना रोज़ एज इंडिकेटर के बारे में। चाइना रोज़ एक कॉमन फ्लावर है जो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया हर जगह मिलता है, और वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स में भी मिलता है। वाइट, पिंक, रेड का बहुत सारा वेराइटी होता है, क्रीम कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, है ना, बहुत सारे कलर में चाइना रोज़ मिलता है। उसको कहीं कहीं पे उड़हुल का फूल बोलते हैं, गुड़हल का फूल बोलते हैं, या फिर उसको मंदार फूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, चाइना रोज़ इंडिकेटर कैसे बनाएंगे? हम लोग चाइना रोज़ का पेटल्स को लेंगे। आपके बुक में आप चाइना रोज़ का फ़ोटो देख सकते हैं, चाइना रोज़ फ्लावर का। उसका आप पेटल्स को लेंगे, उसको वार्म वाटर में डालेंगे, ठीक है, और कुछ देर तक छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वो कलर्ड कलर हो जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको फिल्टर कर देंगे ताकि पेटल्स हट जाए और पिंक कलर का आपको सोल्यूशन मिले। ठीक है, अब जो है एसिडिक सोल्यूशन, हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोप सोल्यूशन ले लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेंगे? लेमन जूस ले लेंगे। ठीक है, तो जो सोप सोल्यूशन है उसमें हम जैसे ही डालेंगे चाइना रोज़ वाटर को, तो हम देखेंगे सोप सोल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो गया, यानी एल्कलाइन सोल्यूशन थोड़ा ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। और अगर हम उसको लेमन जूस में डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो डार्क पिंक हो जाता है, मैजेंटा कलर का हो जाता है। समझे? तो वो यानी कि चाइना रोज़ इंडिकेटर जो कि लाइट पिंक कलर का होता है, उसका सोल्यूशन वो एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज करता है, मैजेंटा में, और बेसिक सोल्यूशन को वो ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर हम उसको सॉल्ट में डालेंगे, जैसे कॉमन सॉल्ट जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर को डालेंगे, पिंक कलर्ड चाइना रोज़ इंडिकेटर सोल्यूशन को, तो देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा सॉल्ट में। तो इससे पता चलता है कि सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है नेचर में। अब आ जाता है रेड कैबेज। देखिए ये ज़्यादातर जल्दी मिलता नहीं है, ज़्यादातर जल्दी हम लोगों को क्या मिलता है? ग्रीन कैबेज मिलता है, पर कुछ कुछ एरियाज़ में रेड कैबेज भी मिलता है। तो रेड कैबेज इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, एक कलर्ड पिगमेंट होता है, और उसी के कारण वो एक इंडिकेटर का काम करता है रेड कैबेज। ठीक है, आप लोग जो है क्या करेंगे, उसके रेड कैबेज के पत्तों को निकाल देंगे, उसको पूरा क्रश कर देंगे। ठीक है, एक बीकर में और पानी में डाल देंगे, बीकर में पानी डालेंगे, उसमें क्रश्ड पत्ते डालेंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे थोड़ी देर और फिर उसको ठंडा होने देंगे। ठीक है, और फिर उसको आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है थोड़ा पर्पल टाइप का कलर का लिक्विड मिलेगा। जब हम लोग कैबेज के पत्तों को बॉयल करेंगे तो वो पानी पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक जगह लेमन जूस का सोल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में आप सोप सोल्यूशन लीजिए, मतलब एक जगह आप एसिड सोल्यूशन ले रहे हैं, एक जगह बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो एसिड सोल्यूशन में जब आप ये कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स के सोल्यूशन को डालेंगे तब आप देखेंगे कि एसिड सोल्यूशन जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। लेमन सोल्यूशन, लेमन वाटर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जो सोप वाटर है बेसिक सोल्यूशन वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर आप उसको कॉमन सॉल्ट में डालेंगे जो कि न्यूट्रल है तो वो वही पर्पल कलर का ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब हम लोग कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। Some other indicators, methyl orange, it is another indicator that gives pinkish red color with acidic solution and yellow color with bases. Phenolphthalein, this substance is also used as an acid-base indicator. It is colorless in acidic solution but turns pink in alkaline solution. Salt in daily life refers to table salt in chemistry. Salt refers to the product of reaction between acid and a base. The reaction in which the reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. Some heat is always involved in neutralization reaction which raises the temperature of the reaction mixture. Acids and bases are chemical opposites. This reaction can be written as a general word equation: acid plus base gives salt plus water. Specific examples of neutralization reaction are hydrochloric acid plus sodium hydroxide gives sodium chloride and water. HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. Nitric acid plus sodium hydroxide gives sodium nitrate plus water. HNO3 plus NaOH gives NaNO3 plus H2O. Sulfuric acid plus sodium hydroxide gives sodium sulfate plus water. H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O. The salt obtained can be acidic, basic or neutral in nature. These are formed by replacing hydrogen of an acid with a metal.
Take a clean test tube, fill it with 10 ml of dilute hydrochloric acid, add 2 drops of litmus solution. Note the color, it is red. Now with the help of dropper, slowly add dilute sodium hydroxide solution in test tube. Stir the solution in test tube with a clean glass rod or shake the test tube carefully. Keep on adding sodium hydroxide drop by drop. Stir well after adding each drop. A stage will come when the color of the solution test tube will turn blue. Stop adding the alkali then. A neutralization reaction has taken place in the test tube. The acid giving a red color with litmus solution is neutralized by the alkali giving blue color, and as soon as all the acid is neutralized. Let us do another activity to understand the process of neutralization. Take 25 ml of dilute solution of sodium hydroxide NaOH in a conical flask and add to a drop of phenolphthalein indicator. The solution will acquire pinkish color. Fill a burette with dilute hydrochloric acid and pour it drop by drop into the flask. As the two solution gets mixed, the pink color gets fainter and fainter, soon the pink color disappears. Test the mixture using red and blue litmus paper. You will notice that both red and blue litmus paper retain their colors. This means that the solution is now neutral. ठीक है, अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़ा, टर्मरिक, चाइना रोज़, रेड कैबेज हमने पढ़ लिया. अब हम लोग कुछ केमिकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे. तो एक होता है मिथाइल ऑरेंज होता है एक इंडिकेटर. ठीक है, वो क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का एक सोल्यूशन होता है लेबोरेटरी में. ठीक है, उसको जब है एसिडिक सोल्यूशन में हम लोग डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज को, तो पिंक रेड कलर देगा. ठीक है, पिंकिश रेड कलर आएगा, हल्का पिंक दिखाई देता है. और जब उसमें हम बेस डालते जाएंगे तो धीरे धीरे येलो कलर वो हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज के साथ. और एक इंडिकेटर क्या है, फेनोल्फथलीन है. ठीक है, और एसिडिक सोल्यूशन में तो वो कलरलेस रहेगा. ठीक है, पर उसमें जब हम लोग अल्कलाइन सोल्यूशन डालते जाएंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दोनों उल्टा उल्टा है ना. सॉल्ट जो है हम लोग के कॉमन लाइफ में हम लोग सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग घर में यूज़ करें, खाने वाला सॉल्ट, टेबल सॉल्ट को. पर केमिस्ट्री में क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, जब एक एसिड और बेस को रिएक्शन करने से जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो सॉल्ट कहलाता है. ठीक है, जो एसिड और बेस के रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो सॉल्ट कहलाता है. ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, एक एसिड के साथ हमने एक बेस को मिलाया तो सॉल्ट बना और थोड़ा हीट भी निकला और वाटर भी बना थोड़ा, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वो थोड़ा गर्म हो जाता है. क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन मिक्सचर में टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि हीट निकल रहा है रिएक्शन होते समय, तो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब गर्म लगता है. एसिड और बेस तो है दोनों एक दूसरे के केमिकल अपोजिट्स है, दोनों का नेचर एक दूसरे का उल्टा है, केमिकल नेचर. ठीक है, तो जब उनके बीच में रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ठीक है, अब आपने पहले भी कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने पढ़ा. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है. और आपने स्ट्रॉन्ग बेस क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है ना. तो आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम लोग रिएक्ट कर दे रहे हैं, HCl प्लस NaOH कर दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को. तो हमको जो सॉल्ट बनेगा वो होगा NaCl और वाटर मिलेगा. ठीक है, उसी तरह और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. तब जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम नाइट्रेट कहलाता है, NaNO3 होता है और प्लस वाटर तो बनेगा है. इसी तरह हम लोग और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे जो सॉल्ट बन रहा है वो Na2SO4 बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है. देखिए आप अपने बुक में रिएक्शंस देखिए तो जो थर्ड रिएक्शन है उसमें 2 NaOH लिया गया है. देखिए इस तरह साइड में कोफिशिएंट्स लगाते हैं 2, 3 जो भी, ताकि बैलेंस कर सके. जितने एटम्स इस तरफ है हर एक एलिमेंट के उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए. बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को वो लगाया जाता है. जो सॉल्ट हम लोग को मिल रहा है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल इन नेचर हो सकता है. ठीक है, दीज आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विथ अ मेटल. अब ये सॉल्ट बना कैसे, आपका जो आप जैसे HCl आप लिए थे, एसिड था, उसमें एक हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन का एटम था, उसके साथ आप NaOH को रिएक्ट किए. NaOH में मेटल है, सोडियम, Na है और OH तो एक अपना रेडिकल ग्रुप है. ठीक है,
आप अब क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे सोडियम मेटल चला जाएगा, इस तरह सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम डालेंगे जो है लिटमस सोल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग HCl लिए हैं, एसिड लिए हैं और लिटमस सोल्यूशन का 2 ड्रॉप डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस सोल्यूशन बता दिया कि जो है चलो ये एक एसिड है, ये रेड कलर का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम उसमें बेस डालना शुरू करेंगे। एसिड के रिएक्शन में, एसिड के सोल्यूशन में हम एक बेस डालेंगे, NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे। कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि हम लोग देखेंगे कि वो पूरा ब्लू कलर का हो गया, वो रेड कलर का सोल्यूशन ब्लू कलर का हो गया, तब हम लोग NaOH डालना बंद कर देंगे। इसका मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें हुआ है। पहले से एक एसिड था, अब उसमें बेस डाले, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गया है। ठीक है, बेस उसके साथ रिएक्ट कर गया है और वो जो है एसिड जो है, जो कि रेड कलर दे रहा था, उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया है और एसिड अब ब्लू कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड का असर ख़त्म हो गया है, यानी वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। और एक है एक्सपेरिमेंट जो कि लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स करते हैं, क्लास 9 में तो नहीं, क्लास 11 में ये कराया जाता है। एक लंबा सा कांच का ट्यूब होता है जिसको ब्यूरेट बोलते हैं, उसमें मार्क्स बने रहते हैं, 1, 2, 3 ml सब मार्क्स बने रहते हैं। वो ब्यूरेट को लंबे से कांच ट्यूब में नीचे टैप जैसा भी लगा रहता है, उसको एक स्टैंड में लगा देते हैं। ठीक है, फिर नीचे एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। देखिए आपके डायग्राम में एक कोनिकल फ्लास्क का डायग्राम बना हुआ है, जो कि कोन के शेप का होगा एक फ्लास्क कांच का। ठीक है, अब उस ब्यूरेट में हम क्या भरते हैं, उस ब्यूरेट में जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देते हैं और नीचे का जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें NaOH भर देते हैं। ठीक है, साथ ही उसमें 1 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल देते हैं। आपने पढ़ा था ना, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या करता है, एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है पर अल्कलाइन सोल्यूशन में पिंक कलर होता है। यानी हम जब अल्कलाइन सोल्यूशन लिए, NaOH लिए कोनिकल फ्लास्क में, उसमें फिनोप्थिलीन डाल दिया तो क्या हो गया, वो पिंक कलर का हो गया है। ठीक है, अब हम उस ब्यूरेट का टैप को खोलेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को उसमें डालते जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उस कोनिकल फ्लास्क में, और कोनिकल फ्लास्क को इसे शेक करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो है पिंक कलर हल्का पिंक हो जाएगा, लाइट पिंक होते होते टोटल ख़त्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब कि जो बेस का बेसिसिटी था उसको एसिड ने न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, आप कैसे जानेंगे ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, आप उसमें एक ब्लू लिटमस पेपर भी डालेंगे, रेड लिटमस पेपर भी, आप देखेंगे वो दोनों में से कोई भी कलर चेंज अपना नहीं करेंगे, ब्लू ही रहेगा, रेड ही रहेगा। इसका मतलब वो सोल्यूशन अब न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। Neutralization reactions are very important in our daily life and are very helpful to us. Nettle sting. When you are stung by a nettle, the burning sensation on your skin is caused by methanoic acid. You can neutralize the acid by rubbing a dock leaf on the wound. As you press the dock leaf against the wound, a base in the leaf juices react with acid in the sting and neutralize it so that the burning sensation stops. Bee sting. A bee sting is acidic and may be neutralized by soap, which is an alkali. A wasp sting is alkaline and may be neutralized with vinegar, which is a weak acid. Ant bite. The sting of an ant contains an acid called formic acid. When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. It can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate, or calamine solution which contains zinc carbonate. Indigestion. Sometimes the stomach produces too much hydrochloric acid called hyperacidity, which causes indigestion. The acid is neutralized by taking a tablet antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. Although antacids are generally safe for occasional use, they can interact with other medications, and anyone who has severe or repeated attacks of indigestion should consult a physician. Self-medication can sometimes be dangerous. Soil treatment. Many food plants do not grow well when the soil is too acidic or too basic. Such plants cannot extract enough nutrients from the soil to produce a profitable crop. Farmers often add quicklime, calcium oxide, or slaked lime
to acidic solution to neutralize it. If the solution is basic, organic matter is added to it. It releases acid which neutralizes the basic nature of the soil. Fire extinguishing. The soda acid fire extinguisher contains a bottle of sulfuric acid and solution of sodium hydrogen carbonate. When a plunger is struck or the extinguisher is turned upside down, the acid reacts with sodium hydrogen carbonate solution and a neutralization reaction takes place. The pressure of the carbon dioxide produced in the reaction pushes the water out of the extinguisher and onto the fire. Factory waste. Factory waste may contain acid. If they are allowed to flow into water bodies, they will kill water animals. Therefore, it is neutralized by adding basic substances before discharging them into water bodies. देखिए नेटल स्टिंग की बात है कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे दैनिक जीवन में, हर दिन के जीवन में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। पहले बात करते हैं नेटल स्टिंग की। नेटल आपने पढ़ा था एक पौधा होता है जिसके लीव्स जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं और वो स्किन पे लग जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह का एसिड स्किन में छोड़ देते हैं, जो कि एसिड क्या होता है, मिथानोइक एसिड होता है, जिससे हम लोग को एक बर्निंग सेंसेशन स्किन में फील होता है कि जलन सी स्किन में फील होती है। अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे, तो और एक पत्ता होता है जिसे डॉक लीफ कहते हैं, उस डॉक लीफ को वहाँ पे रब कर देना है, जहाँ पे नेटल लीफ से आपको स्टिंग हुआ है, चुभा है, वहाँ पे आप वो डॉक लीफ को रब कर देंगे, घिस देंगे, तो जो है आप जो डॉक लीफ में बेसिक सोल्यूशन होता है वो उस एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स होके वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा और बर्निंग सेंसेशन, आपको जो जलन हो रही है वो रुक जाएगी। ठीक है। अब बी स्टिंग, मधुमक्खी जब आपको डंक मारती है तो मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है, वो भी एक एसिड देती है, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अल्कली लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सोप का सोल्यूशन बना के या सोप को ही वहाँ पे थोड़ा रब कर देंगे जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब एक वैस्प स्टिंग होगा। वैस्प दूसरा है भंवरा टाइप का, या फिर येलो कलर का जो एक भंवरा उड़ता रहता है वो वैस्प होता है। ठीक है। मधुमक्खी जैसा ही देखने में पर येलो कलर का होता है, और एक भंवरा होता है ब्लैक, मोटा मोटा होता है। तो जब वो उड़ उड़ के आपको काटेगा, आपको डंक मारेगा, तब चूँकि वो क्या है, वो एक बेसिक सोल्यूशन इंजेक्ट करेगा आपके स्किन में, जो वैस्प होता है भंवरा, तब आपको उसके ऊपर एक एसिड लगाना है, इसलिए आप विनेगर लगा देंगे जो कि हल्का वीक एसिड होता है, तब आपका जो है स्किन ठीक हो जाएगा। एंड बाइट, जब आपको बड़ी वाली चींटियों ने काट दिया या लाल चींटियों ने काट दिया तो आपका पैर में जलन होती है ना, क्यों? क्योंकि चींटियाँ जब काटती हैं तो वो एक एसिडिक सोल्यूशन आपके स्किन में छोड़ देती हैं, जिसको कि फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो आपके पैर में जलन होती रहती है, फॉर्मिक एसिड, अब उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप बेकिंग सोडा, घर में जो बेकिंग सोडा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ठीक है। NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आप उसमें थोड़ा पानी मिला के इसको मॉइस्ट कर देंगे और अपने स्किन में वहाँ पे घिस देंगे, तो चींटियों को काटने की जलन कम हो जाएगी। नहीं तो और एक कैलामाइन सोल्यूशन होता है जिसमें जिंक कार्बोनेट मिला रहता है, ZnCO3 मिला रहता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 नहीं, ZnCO3 मिला रहता है, तो वो जो है आपके जो है वहाँ पे घिस देंगे कैलामाइन सोल्यूशन को, तो उससे भी चींटियों के काटने से आपको राहत मिल जाएगी। इनडाइजेशन, देखिए हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि हमारे स्टमक में एक एसिड निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लगता है जब लोग ठीक से टाइम पे खाना पीना नहीं करते हैं, तो एक्सेस ऑफ एसिड जब स्टमक में हो जाएगा उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। हाइपर मतलब कुछ ज़्यादा हो जाएगा कोई चीज़, तो उसके कारण इनडाइजेशन होता है, लोगों को खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, हजम नहीं होता है। ठीक है। और हमेशा कैसा एसिडिटी, जलन होगी लंग्स के पास, ऐसा लगेगा, तो उसको हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, तो एक एंटा एसिड का हम लोग टैबलेट खाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंटा एसिड किस में मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक दवाई होती है उससे मिलेगा। वो एंटा एसिड एक वो सोल्यूशन फॉर्म में भी लोग डॉक्टर्स देते हैं, मतलब कि सिरप फॉर्म में भी देते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। ठीक है। MgOH2 रहता है जो कि एक बेस होता है, तो वो बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिड के असर को कम कर देगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो कभी कभी जब इंडाइजेशन होगा तो हम लोग एंटा एसिड यूज़ कर सकते हैं, पर एवरीडे यूज़ के लिए ये ठीक नहीं है।
जिसको हर समय पेट खराब हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, उसको हर रोज़ एंटासिड यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जो है अपने से हम लोग अपने आप को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी डेंजरस हो सकता है। अब सॉयल ट्रीटमेंट देखिए, चूँकि सॉयल में लोग बहुत फर्टिलाइज़र वगैरह मिला रहे हैं तो कहीं का सॉयल बहुत एसिडिक हो जाता है या बहुत अल्कलाइन हो जाता है। तो दोनों केस में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स सॉयल से न्यूट्रिएंट ले ही नहीं पाएंगे। अगर सॉयल एसिडिक या अल्कलाइन हो जाएगा तो फिर क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे नहीं, फसल होगी नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सॉयल जो है एसिडिक हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलाते हैं फार्मर लोग? क्विक लाइम मिलाते हैं। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्विक लाइम मिलाते हैं या स्लेकर्ड लाइम मिलाते हैं, CaOH2 स्लेकर्ड लाइम मिलाते हैं। ठीक है, ताकि जो है अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेस है, CaO और CaOH2 बेस है, उसको मिला देंगे एसिडिक सॉयल के साथ और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर अगर सॉयल अल्कलाइन है, ज़्यादा एल्कलिनिटी हो गया है सॉइल में, तब ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। मतलब कि ये जो मैन्योर होता है ना, खुद से तैयार किया हुआ खाद जो होता है प्लांट से और गोबर वगैरह से, तो उस खाद को डालते हैं तो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। जब सोल्यूशन सॉइल अगर बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, तो क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर में, मैन्योर में क्या रहता है? थोड़ा एसिड रहता है, वो बेसिक सॉइल के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसी तरह फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से जो कचरा, जो भी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है मान लीजिए, उस तरह की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो है, या वो भी जहाँ से एनिमल का स्किन वगैरह को निकाला जाता है, एनिमल्स को काटा जाता है, तो वहाँ पे भी एसिड्स यूज़ करते हैं बहुत सारा। तो क्या है कि जब वो वेस्ट वाटर या वेस्ट कचरा जो भी निकल रहा है उसमें एसिड रहता है, और ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ का वेस्ट कहाँ जाता है? नदियों में, पॉन्ड्स, लेक्स में जाता है। तो उसमें अगर जाएगा तो वो पॉन्ड, लेक, रिवर में जो भी मैरीन लाइफ है, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स है, वो सारे मर जाएंगे, इतना एसिडिक वेस्ट उसमें जाएगा। तो इसीलिए फैक्ट्रीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनका जो एसिडिक वेस्ट वाटर निकल रहा है, पहले उसमें एक बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, उसके असर को ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, जहाँ पे भी। ठीक है, अब एक फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। देखिए, बहुत अलग अलग तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है, और क्या है? एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो उसमें एक बोतल सल्फ्यूरिक एसिड का है और एक सोल्यूशन बनाया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो भी है। ठीक है, उसमें अलग अलग जगह पे रख दिया गया है। अब जो है, जब उसके नॉब को हम लोग घुमाते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं उस फायर एक्सटिंग्विशर को, तो वो एसिड जो है वो उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, और अंदर बहुत हाई प्रेशर में ये दोनों रहते हैं, गैस बहुत क्रिएटेड रहता है, बहुत हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस प्रेशर में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, तो उससे जो है स्प्रे जैसा बाहर निकलेगा, वाटर का स्प्रे बाहर, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, तो वाटर का स्प्रे बाहर निकलेगा उस फायर एक्सटिंग्विशर से और फायर बुझ जाएगा, फायर के ऊपर वाटर का स्प्रे निकलेगा। ठीक है, तो आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर ख़त्म हो गया है। जल्दी हम लोग एक नए चैप्टर में मिलेंगे, और मेरे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें। जल्दी हम लोग एक नए चैप्टर में मिलेंगे जो कि होगा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का चैप्टर होगा, जो कि इजी चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।